सलामी मंच पर जनरल हिंद रवि सिंह मान, अति विशिष्ट सेवा मेडल। ब्रिगेडियर एफ.पी. खत्री, परेड के उप कमान ऑफिसर, इस भव्य परेड को मेजर जनरल हिंद रवि सिंह मान, अति विशिष्ट सेवा मेडल को सौंपने के लिए सलामी मंच की ओर बढ़ रहे हैं। श्रीमान, सेना दिवस परेड, 31 ऑफिसर्स, 64 जेसीओस और 2470 अन्य पद परेड पर। परेड की कमान मेजर जनरल हिंद रवि सिंह मान, अति विशिष्ट सेवा मेडल द्वारा ली गई। परेड कमांडर मेजर जनरल हिंद रवि सिंह मान, अति विशिष्ट सेवा मेडल, जनरल ऑफिसर कमांडिंग दिल्ली एरिया, ने राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज में शिक्षा पाई। आरआईएमसी देहरादून से पास आउट होकर आपने 1957 में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़कवासला में प्रवेश किया। फिर इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून से 17 दिसंबर 1961 को चौथी बटालियन ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स, एक राजपूत में कमीशन प्राप्त किया। Keen sportsman of repute in his early years of service, and as young officer he served in Gaza as part of United Nations peacekeeping force with 4th Battalion Brigade of the Guards, 1st Rajput. General H.R.S. Maan is a graduate of Defence Services Staff College, Wellington, and has commanded 5th Battalion of Brigade of the Guards. The general officer has held various important staff assignments during his formative years, which include Grade 2 appointment in Darbuk, Ladakh, Colonel G.S. Faculty of Studies, College of Combat, Mau, Assistant Military Secretary of a Corps, Colonel Adjutant of a Mountain Division. He was the first Chief of Staff, Army Training Command on its inception and Chief of Staff of a Corps in the East. दिसंबर 1985 में ब्रिगेडियर की रैंक में पदोन्नति पाकर आपने जम्मू और कश्मीर में एक इन्फेंट्री ब्रिगेड की कमान की। इन्फेंट्री ब्रिगेड की सफल कमान पर
आपको नेशनल डिफेंस कॉलेज नई दिल्ली में कोर्स के लिए चुना गया। फिर भारतीय शांति सेना के एक इन्फेंट्री डिव में डिप्टी जनरल ऑफ कमांडिंग के पद पर आप वायुनिया क्षेत्र श्रीलंका में नियुक्त हुए। डिफेंस प्लानिंग स्टाफ रक्षा मंत्रालय फलदायी कार्यकाल के पश्चात पुनः पदोन्नति हुई। प्रशिक्षण कमान के गठन पर मेजर जनरल की रैंक में आप उसके प्रथम चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त हुए। जलमान जम्मू और कश्मीर के कुपवाड़ा क्षेत्र में एक इन्फेंट्री डिव के जनरल ऑफ कमांडिंग थे। 34 वर्षों की सराहनीय शानदार सैन्य सेवा के बाद मेजर जनरल HRS मान एविएशन जनरल ऑफ कमांडिंग दिल्ली एरिया के महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त हुए। आप इस समय ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स के कर्नल हैं। As a mark of recognition of his outstanding and distinguished service of exceptional order in the frontiers of Jammu and Kashmir, he was awarded the Ati Vishisht Seva Medal on 26 January 1995. The general officer possesses special expertise in counter-insurgency operations. His present assignment in the national capital as General Officer Commanding is a testimony to his organizational ability, perseverance, dedication, and emotional involvement in the onerous tasks carried out by him in previous assignments. Coming back to the introduction of the mechanized columns, taking part in the parade as part of mechanized contingent is the helicopter Chetak Ranjit version of 660 Reconnaissance and Observation Squadron of the Army Aviation Corps. This elite arm has served with glory in Jammu and Kashmir in 1948, 65, and 71 wars. It is a vital element of Siachen operations today. The contingent is led by Major Pradeep Walia. और उसके बाद है AM-50 ब्रिज, भारी वाहन को भी वाटर ऑब्स्टेकल्स पर पुल बनाकर आसानी से पार करा सकता है। 415 इंडिपेंडेंट इंजीनियर स्क्वाड्रन मद्रास सैपर्स, कमान कैप्टन गौरव मिश्र। Next are the two combat engineer tractors from 64 Assault Engineer Regiment and 114 Armored Engineer Regiment. The tractors are commanded by Naib Subedar Kashmir Singh and Naib Subedar Chanchal Singh. मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री की 9वीं बटालियन, जी हाँ, BMP-2 के साथ। BMP-2 ऐसे प्रक्षेपास्त्र से लैस है जो 4000 मीटर की दूरी तक टैंक को नष्ट कर सकता है। BMP-2 पानी में भी तैर सकता है और 30 मिलीमीटर की कैनन शत्रु के हेलीकॉप्टर और विमानों को नष्ट कर सकता है। नेतृत्व मेजर भारतेंदु केसर। Last but not the least are the troop of BRDM-2 Striker version from 19th Battalion Brigade of the Guards. BRDM-2 is an amphibious vehicle. It can even fight in a nuclear environment. The contingent is led by Captain Sampuran Singh. और ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स की यह सबसे नई बटालियन है, 19वीं बटालियन रेकी एंड सपोर्ट व्हील्ड। The parade is awaiting the arrival of General Officer Commanding in Chief, Western Command, Lieutenant General H.B. Kala, Ati Vishisht Seva Medal, Shaurya Chakra.
तीन एक, 2 3 1, 2 3 1। एक, 2 3 1, 2 3 1। Lieutenant General H.P. Kala, Ati Vishisht Seva Medal, Shaurya Chakra, is an alumnus of National Defence Academy and was commissioned in 6th Battalion of the Jat Regiment in 1960. He is presently holding the prestigious appointment of Colonel of the same regiment. A decorated soldier, he was awarded Shaurya Chakra for gallantry in 1961 during his tenure in Jammu and Kashmir, and Ati Vishisht Seva Medal in 1994 for his long and distinguished service. Lieutenant General H.P. Kala, Ati Vishisht Seva Medal, Shaurya Chakra, General Officer Commanding in Chief पश्चिमी कमान का युद्ध अनुभव महत्वपूर्ण है, शौर्य अनुकरणीय है। आपने 1960 के बाद भारत द्वारा लड़े गए महत्वपूर्ण युद्धों में सक्रिय भाग लिया, देश विदेश में विभिन्न पदों पर कार्यरत रहे। आप नेशनल डिफेंस कॉलेज के ग्रेजुएट हैं, विदेशों में विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम से लाभान्वित हुए हैं। पश्चिमी सेना को कमान करने से पहले जनरल काला पश्चिमी क्षेत्र में ही एक कोर की कमान कर चुके हैं। Chief of Air Staff, Air Chief Marshal S.K. Serene, Param Vishisht Seva Medal, Ati Vishisht Seva Medal, Vayu Sena Medal, 8D Kong. एयर चीफ मार्शल S.K. सरीन, परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, एडी कॉन्ग, वायुसेना अध्यक्ष ने अभी अभी परेड की सलामी ली। एयर चीफ मार्शल S.K. सरीन ने 29 मई 1957 को भारतीय वायुसेना की उड़ान शाखा में फाइटर पायलट के रूप में कमीशन प्राप्त किया। भारतीय वायुसेना में उपलब्ध सभी प्रकार के जेट फाइटर विमान स्वयं उड़ाने का अनुभव है आपको। अभी तक कुल मिलाकर 4000 घंटों तक सिंगल इंजन जेट एयरक्राफ्ट उड़ाया है आपने। इनमें मिराज 2000 और मिग 29 शामिल हैं। He is a graduate of Defence Services Staff College and has held various important field and staff appointments. He has been Air Advisor in London. He has held the appointment of Director Intelligence at Air Headquarters, Senior Air Staff Officer of an Operational Command, Air Officer Commanding in Chief Western Air Command, and Vice Chief of the Air Staff. He was appointed as the Chief of Air Staff on 31st December 1995.
एयर चीफ मार्शल एस के सरीन को कर्तव्य निष्ठा के लिए 1971 में वायुसेना मेडल, 1990 में अति विशिष्ट सेवा मेडल तथा 1995 परम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया। The Chief of Naval Staff, Admiral Vishnu Bhagwat, Param Vishisht Seva Medal, Ati Vishisht Seva Medal, Aide de Camp has just arrived. दो तीन एक, दो तीन एक, दो तीन एक। दो तीन एक, दो तीन एक। दिल्ली छावनी का परेड ग्राउंड, जहां से मैं एडमिरल विष्णु भागवत, एडमिरल विष्णु भागवत परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, एडी कॉन्ग नौसेना अध्यक्ष ने अभी अभी सेना दिवस परेड की सलामी कुछ ली। क्षणों में अब यहाँ पधारने वाले हैं। अभी अभी नौसेना अध्यक्ष एडमिरल विष्णु भागवत परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल यहाँ पधारे हैं और अब इस समय वो अपना आसन ग्रहण करने जा रहे हैं देखने के लिए। इससे पहले एयर चीफ मार्शल एस के सरीन परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, वायुसेना मेडल हमारी वायुसेना के अध्यक्ष यहाँ पधार चुके हैं। इन दोनों यानी वायुसेना अध्यक्ष और नौसेना अध्यक्ष के यहाँ पधारने पर उन्हें परेड में सलामी दी और अब वो अपने अपने स्थान पर हैं। एयर चीफ मार्शल सरीन और एडमिरल भागवत। आज का दिन न केवल भारतीय सेना के लिए बल्कि सारे देश के लिए स्वर्णिम दिन है, गौरव का दिन है, फख्र का दिन है। आज ही के दिन 1949 में एक भारतीय जनरल के.एम. करियप्पा OBE ने भारतीय सेना की कमान संभाली थी, कमांडर इन चीफ बने थे और उन्होंने ब्रिटिश कमांडर इन चीफ जनरल सर फ्रांसिस रॉय बुशर से ये पदभार ग्रहण किया था। भारतीय सेना का इतिहास अपने आप में बहादुरी का इतिहास है, शौर्य का इतिहास है। भारतीय सेना का ये ध्वज जिस पर न केवल देश के हर सैनिक को गर्व है बल्कि हर भारतवासी को गर्व है। भारतीय सैनिकों ने अपने झंडे को न केवल देश की धरती पर बल्कि विदेशों में भी शांति काल हो या युद्ध का ज़माना हमेशा फहराए रखा है और उसके रहनुमाई में वो आगे बढ़ते रहे हैं। हल्का कोहरा है इस समय, हल्की सी चादर हो जैसे यहाँ परेड मैदान पर, जहाँ दूर वो ऊंचे ऊंचे पेड़ एक हरा आलोक फहराते हुए और थल सेनाध्यक्ष पधार आए हैं। मंच पर थल सेनाध्यक्ष जनरल शंकर राय चौधरी, दो तीन एक, दो तीन एक, दो तीन एक। दो तीन एक, दो तीन एक। परेड कमांडर दिल्ली क्षेत्र के जनरल ऑफिसर कमांडिंग हिंद रवि सिंह मान, मेजर जनरल हिंद रवि सिंह मान अति विशिष्ट सेवा मेडल ने अभी अभी सलामी दी और उनके आदेश पर सारे बैंड ने, सारी परेड ने आवर चीफ धुन बजाकर अपने सेनाध्यक्ष को सलामी दी, सम्मान प्रकट किया। और अब
सलामी मंच की ओर परेड बढ़ रहे हैं। कमांडर मेजर जनरल हिंद रवि सिंह मान मंच की ओर आ रहे हैं। श्रीमान 31 ऑफिसर्स 64 सरदार समान 2470 जवान प्लेटफॉर्म परेड आपके निरीक्षण के लिए हाजिर है। परेड कमांडर मेजर जनरल हिंद रवि सिंह मान के अनुरोध पर अब थल सेना अध्यक्ष जनरल शंकर राय चौधरी परेड का निरीक्षण करने पधार रहे हैं। एक अनुपम अवसर होता है ये, और ख़ास तौर पर उस समय जबकि अपने परिवार का मुखिया यानी भारतीय सेना की बात कर रहे हैं हम, उसके अध्यक्ष थल सेना अध्यक्ष स्वयं आज के इस महत्वपूर्ण दिन सेना दिवस के अवसर पर इस परेड का निरीक्षण करने के लिए पधार रहे हैं। जीप पर उनके ठीक पीछे हैं मेजर जनरल हिंद रवि सिंह मान, परेड कमांडर और दिल्ली क्षेत्र के जनरल ऑफिसर कमांडिंग। और ये किले की फसील और उस पर फहरा के यूनिटों के झंडे एक गर्व का क्षण है ये हर भारतीय सैनिक के लिए, भले ही वो यहाँ परेड में मौजूद हो या दूर दराज के इलाकों में कहीं अपने कर्तव्य के पालन में लगा हुआ हो। आज का ये दिन न केवल सैनिकों को याद दिलाता है, बल्कि हर भारतवासी को भी ये प्रदर्शित करता है कि हमारे देश के जवानों ने, हमारे देश के सैनिकों ने हमेशा देश के परचम को ऊंचा उठाए रखा है। 1976 में आपने आज की इस परेड में घुड़सवार सेना और उनके अलावा पैदल सेना के दस्ते और मैकेनाइज्ड कॉलम हिस्सा ले रहे हैं। एक अवसर जबकि देशवासी ये देख सके कि आज इस समय शांति काल में जिस तरह गर्व से ये अपने अपने स्थान पर मौजूद हैं, इस समय परेड में या देश में कहीं भी किसी भी स्थान पर सीमाओं का पहरा देते हुए, वैसे ही वो युद्ध के ज़माने में भी अपनी आन को कायम रखने के लिए, अपने देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए, अखंडता के लिए, एकता के लिए सदा तत्पर रहते हैं। बैंड भी इस समय मास मिलिट्री बैंड और पाइप एंड ड्रम्स उपस्थित हैं। बैंड जो कि एक कहा जाए ऐसा रस घोलता है इनके खुश्क जीवन में, जो हमेशा इन्हें अपने कर्तव्य की याद दिलाता रहता है। इस समय परेड का निरीक्षण करते हुए थल सेना अध्यक्ष 61वीं कैवलरी और उसके बाद रिमाउंट और वेटरनरी कोर, फिर मद्रास इंजीनियरिंग ग्रुप और कोर ऑफ सिग्नल्स, मद्रास रेजिमेंट, मराठा लाइट इन्फेंट्री, राजपूताना राइफल्स, राजपूताना रेजिमेंट और उसके बाद ये है बैंड। दूर किले के झरोखे में चौकस सैनिक। हम अपने विशिष्ट अतिथियों और दर्शकों को आज प्रातः 61वीं कैवलरी घुड़सवार सेना। आज का दिन, जैसा मैंने आपसे कहा, 1949 में 15 जनवरी को एक भारतीय ने, जनरल के.एम. करियप्पा ओबीही, जो बाद में फील्ड मार्शल बने, उन्होंने भारतीय सेना की कमान संभाली थी आज़ादी के बाद, और जनरल सर फ्रांसिस रॉय बुशर जो कि ब्रिटिश कमांडर इन चीफ थे, उनसे पदभार ग्रहण किया था। आज़ादी के बाद भारतीय सेना ने अनेक युद्ध लड़े हैं और वहाँ उन्होंने ये साबित किया है कि भारतीय सैनिक किस धातु का बना है। रिमाउंट और वेटरनरी कोर के सामने थल सेना अध्यक्ष सेना दिवस पर परेड का निरीक्षण करते हुए। दो घुड़सवार
सेनाएं हैं इस समय, पहले 61वीं कैवलरी और अब रिमाउंट और वेटरनरी कोर। भले ही ये घोड़े मनुष्य की भाषा न समझें, पर अपने सवार के प्रति उनकी वफादारी और किस प्रकार से आज्ञा पालन करते हैं, भारत के घोड़ों ने भी इतिहास बनाया है। चेतक की जो परंपरा है वो जारी है। मद्रास इंजीनियरिंग ग्रुप के बाद कोर ऑफ सिग्नल्स, और इस प्रकार बैंड की मधुर धुन पर निरीक्षण करते हुए थल सेनाध्यक्ष इस समय परेड के सामने से पधार रहे हैं। मराठा लाइट इन्फेंट्री के जवान, राजपूत रेजिमेंट की टुकड़ी, और अब बैंड। कदम से कदम मिलाकर चलने की प्रेरणा देता भारतीय सेना का ये बैंड, जिस पर न केवल सैनिकों को बल्कि देश को भी गर्व है। सिख लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट के जवान चुस्त मुस्तैद सावधान की मुद्रा में। उसके बाद कुमाऊं रेजिमेंट के बहादुर गोरखा बहादुर, आर्मी सर्विस कोर के जवान, प्रादेशिक सेना के बाद अब मैकेनाइज्ड कॉलम, वो हथियार जो रण क्षेत्र में दुश्मन का दिल दहला देते हैं। जब ये तोपें चलती हैं, जब ये टैंक गर्जना करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो शत्रु थर्रा उठता है। दिल्ली छावनी का ये परेड मैदान वैसे तो हमेशा ही जिंदा जावेद रहता है। सैनिकों की परेड, उनका अभ्यास, उनका प्रशिक्षण, लेकिन आज के दिन जैसे इसमें भी जिस नई रूह पैदा हो जाती है। सवेरे का समय, तेज सर्दी, कोहरा पेड़ों की फुनगियों पर अभी भी बरकरार, और ऐसे में यहाँ भारतीय सेना के ये बहादुर सैनिक अपना सेना दिवस मना रहे हैं और इस अवसर पर आयोजित इस विशेष परेड में अपने सेनाध्यक्ष जनरल शंकर राय चौधरी को सलामी दे रहे हैं, उनके प्रति सम्मान प्रकट कर रहे हैं। भारतीय सेना जो देश की अखंडता और एकता की प्रतीक है, हर इलाके के लोग, हर धर्म के लोग, हर रंग के लोग, हर तबके के लोग, ऐसी है भारतीय सेना। अपने आप में दुनिया में एक नमूना, एक अनुपम उदाहरण। वर्तमान सैनिक अधिकारी, अनेक पूर्व अधिकारी और बहादुर सैनिक हर रैंक के इस समय यहाँ मौजूद हैं इस परेड में। इनके लिए आज का दिन गर्व का दिन है, फख्र का दिन है,
क्योंकि जिस सेना के वो सदस्य हैं वो दुनिया की बेहतरीन सेनाओं में से है, फौजों में से है। समय समय पर हमारे देश के सैनिकों ने अपनी परंपराओं को कायम रखते हुए, अपने बहादुरी की परंपराओं को जो उन्हें विरासत में मिली है उसे कायम रखते हुए हमेशा अपने को आगे रखा है। ये वो बहादुर सैनिक हैं जो घबराते नहीं संकटों से। कितनी भी परेशानियां आए, संकट आए, किनारों से मुझे ना खुदा दूर ही रखो, वहां लेकर चलो जहां तूफान उठने वाला हो। ये वो हैं जो तूफानों से नहीं घबराते बल्कि तूफानों की इज्जत देखना चाहते हैं। और कितना सुंदर दृश्य है इस समय, यहाँ मौजे गुल, मौजे सबा, मौजे सहर लगती है, सर से पा तक वो समा है कि नजर लगती है। ये देश और देश की सेना के जवान जिनका अभी अभी थल सेनाध्यक्ष जनरल शंकर राय चौधरी ने निरीक्षण किया, एक ऐसी सेना जिसके वो मुखिया हैं, जिसने समय पड़ने पर हमेशा आगे बढ़कर शत्रु से लोहा लिया है और शांति काल में न केवल देश में बल्कि अन्य देशों में भी जाकर सेवा कार्य निभा है, नाम पैदा किया है, देश का नाम रोशन किया है। ये वो बहादुर हैं जिनका एक ही मकसद, लक्ष्य है, जान जाए पर आन न जाए। भारतीय सेना के हथियार में कभी जंग नहीं लगता, ये कई बार हमारे देश के जवान साबित कर चुके हैं, प्रमाणित कर चुके हैं। आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद रण क्षेत्र में उन्होंने लोहा लिया है और शत्रु के दांत खट्टे किए हैं। निरीक्षण करने के बाद थल सेनाध्यक्ष सलामी मंच पर पधार आए हैं। हर वर्ष ये दिन आता है 365 दिनों की परिक्रमा करके और एक नया संदेश लेकर आता है। जवानों के लिए जहाँ एक उमंग और उत्साह का दिन है, वहाँ प्रण का दिन भी है, संकल्प का दिन है कि जो यूनिफॉर्म इन्होंने जो पोशाक धारण की है उसका सम्मान, उसकी इज्जत और उसके साथ ही देश की सीमाओं की रक्षा, वो सब ये अपना कर्तव्य समझते हैं। ये वो है मेजर जनरल हिंद रवि सिंह मान परेड कमांडर के आदेश पर अब परेड समीक्षा क्रम में आगे बढ़ रही है। समीक्षा क्रम में आने के बाद परेड ने फिर सलामी दी है अपने थल सेनाध्यक्ष को और अब थल सेनाध्यक्ष अधिकारियों को और बहादुर सैनिकों को पुरस्कारों द्वारा, पदकों द्वारा सम्मानित करेंगे। जिन्होंने अपने कर्तव्य का पालन किया है, उनमें से कुछ फर्ज की बलिवेदी पर कुर्बान हो गए, पीठ नहीं दिखाई, लेकिन आगे बढ़कर दुश्मन से लोहा लिया। नजर कर देना लहू अपना चमन के वास्ते, वक्त आ जाए तो मिट जाना वतन के वास्ते। ये हैं वो जवान हमारे देश के जिन्हें अब देशवासियों की तरफ से थल सेनाध्यक्ष सम्मानित करेंगे, पुरस्कृत करेंगे
पदक प्रदान करेंगे। जीवन का एक ऐसा क्षण जिस पर हर सैनिक गर्व करता है और हर सैनिक की अभिलाषा और इच्छा रहती है कि वो भी बहादुरी का कारनामा दिखाए और उसे ये सम्मान मिले। कर्नल प्रभंजन संगम, दूसरी बटालियन, सिख रेजिमेंट। लेफ्टिनेंट कर्नल अब कर्नल प्रभंजन संगम ने जम्मू कश्मीर के ब्रेल गांव में एक काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन का संचालन किया। बार बार दी गई चेतावनी के बावजूद जब आतंकवादियों ने समर्पण नहीं किया तो उस समय हुई मुठभेड़ में आपने 4 आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया, 2 को पकड़ लिया और भारी मात्रा में गोली बारूद बरामद किया। वीरता एवं कर्तव्य निष्ठा के लिए आपको सेना मेडल से सम्मानित किया जा रहा है। कर्नल प्रभंजन संगम। Lieutenant Colonel T.J. Davis, 11 Armored Regiment. Then Major T.J. Davis with 15th Battalion of Rashtra Rifles, while leading one of the search parties in village Tangwadi Bala in Jammu and Kashmir, came under heavy and effective fire from the militants. His party succeeded in killing 5 militants and capturing 5 weapons and assorted ammunition. For his courageous act and display of exemplary bravery in the face of enemy's heavy fire, Lieutenant Colonel T.J. Davis is awarded Sena Medal. Lieutenant Colonel T.J. Davis. मेजर सुनील बख्शी, 4थी बटालियन, द ग्रेनेडियर्स, मरणोपरांत। मेजर सुनील बख्शी तब 20वीं बटालियन आसाम राइफल्स में नियुक्त थे। नागालैंड की राष्ट्रीय समाजवादी परिषद के बागियों का मनोबल तोड़ने के लिए उन्होंने बहुत लगन से दिन रात काम किया। एक दिन जब उनकी पोस्ट को बागियों की भारी गोलियों का लगातार सामना करना पड़ा, तब उन्हें बहुत गंभीर घाव लगे। गंभीर घावों के बावजूद वे अपनी अंतिम सांस और अपनी अंतिम गोली तक बागियों से लोहा लेते रहे। बागियों का नाश करते हुए उन्होंने स्वयं वीर गति पाई। शूर वीरता के लिए मेजर सुनील बख्शी को मरणोपरांत सेना मेडल से सम्मानित किया जा रहा है। उनका वीरता पदक ग्रहण करेंगी उनकी पत्नी श्रीमती रश्मि बख्शी। Major Daljit Singh Goraya, 3rd Battalion, the Bihar Regiment. Major Daljit Singh Goraya, then serving with 13 Rashtra Rifles, along with 3 companies, were ambushed near Road Junction west of village Barsu in Jammu and Kashmir. Despite being hit on the hand, the officer kept firing from the hip. The terrorists fled, leaving behind an arsenal of weapons. Thus, a very dangerous ambush was broken. For his exemplary courage and extraordinary leadership qualities, he is being awarded the Sena Medal. Major Daljit Singh Goraya. मेजर रंजीत सिंह देसवाल, 11वीं बटालियन, ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स। आपने जम्मू कश्मीर में पूर्वी चंबा में स्थित गैम्बलिन नाले के साथ अवरोध स्थापित करते समय एक मुठभेड़ किया आतंकवादियों से, और उस मुठभेड़ में
4 आतंकवादियों को मार गिराया, भारी मात्रा में हथियार और गोली बारूद बरामद किए। साहसिक नेतृत्व और बहादुरी के लिए आपको सेना मेडल से सम्मानित किया जा रहा है। मेजर रंजीत सिंह देसवाल। Captain Shailendra Singh Shahi, 15th Battalion, the Punjab Regiment. Captain Shailendra Singh Shahi led a successful cordon and search operation in hills of Shirpur and Kochilian. The operation resulted in killing 5 hardcore militants. For his tactical ingenuity of the highest order and unflinching devotion to duty, he is being awarded the Sena Medal. Captain Shailendra Singh Shahi. कैप्टन अब मेजर चैतन्य लिमये, 3री बटालियन द पैराशूट रेजिमेंट। आपने आसाम के जिंदापानी गांव में विद्रोहियों के भूमिगत ठिकाने पर छापा मारा। इस छापे में आपने तुएंसांग क्षेत्र के भूमिगत केंद्रीय प्रबंधन अधिकारी और नागालैंड की राष्ट्रीय समाजवादी परिषद के तिलचिम उपनाम SK 4 को मार गिराया। भूमिगत विद्रोहियों की गोलियों की बौछारों के सामने मानसिक संतुलन और शौर्य के लिए आपको सेना मेडल प्रदान किया जा रहा है। मेजर चैतन्य लिमये। नायब सूबेदार धूराराम वर्मा, 3री बटालियन द ग्रेनेडियर्स, मरणोपरांत। बिमला पोस्ट कुपवाड़ा जम्मू कश्मीर में नायब सूबेदार धूराराम वर्मा एम्बुश पार्टी कमांडर थे। अपने घायल सहयोगियों की सहायता करते समय उन पर गोलियों की भयंकर बौछार हुई। इससे पूर्व की आतंकवादी उनके और अन्य जवानों को घायल कर पाते, उन्होंने उन आतंकवादियों को धराशायी कर दिया। इसमें स्वयं भी वीर गति को प्राप्त हुए। असाधारण नेतृत्व, अनुपम साहस के लिए नायब सूबेदार धूराराम वर्मा को मरणोपरांत सेना मेडल से सम्मानित किया जा रहा है। वीरता पदक ग्रहण करेंगी उनकी पत्नी श्रीमती मनभरी देवी। Havaldar Aslamuddin, 4th Battalion, the Grenadier Regiment. Havaldar Aslamuddin was the senior-most non-commissioned officer of the firing group of the ambush party. In the ensuing encounter, 3 militants were killed by him and large quantity of weapons were recovered. Havaldar Aslamuddin thus displayed conspicuous gallantry, indomitable courage and extreme devotion to duty in the face of heavy militants' fire and is being awarded the Sena Medal. Havaldar Aslamuddin. नायक अश्विनी कुमार, 9वीं बटालियन द पैराशूट रेजिमेंट कमांडो, मरणोपरांत। नायक अश्विनी कुमार की 9 पैरा कमांडो की टीम को उन आतंकवादियों को खोजकर मारने का काम सौंपा गया जो अमरनाथ यात्रा को असफल बनाने की योजना में थे। उन आतंकवादियों से हुई मुठभेड़ में फटे हुए हथगोले के टुकड़े नायक अश्विनी कुमार के सिर पर आ लगे। अपनी अंतिम सांस छोड़ने से पहले उन्होंने एक और आतंकवादी को मार गिराया, एक को घायल करने में भी सफल रहे। शौर्य और साहस के लिए
नायक अश्विनी कुमार को मरणोपरांत सेना मेडल का सम्मान दिया जा रहा है। पदक ग्रहण करेंगी उनकी पत्नी श्रीमती लीला देवी। Sipai Manoj Kumar Singh, 27th Battalion, Rajput Regiment. Sipai Manoj Kumar Singh was part of the search party in village Wazir Baul in Jammu and Kashmir, which came under heavy fire from the hidden militants. By catching a grenade in the air and throwing it towards the militants, he saved the lives of his teammates. With total disregard to his personal safety against heavy odds, he is being awarded the Sena Medal. Sipai Manoj Kumar Singh. Vishisht Seva Medals. The Vishisht Seva Medal is awarded to personnel of defense services in war and in peace for distinguished service of a high order. 13 officers are being awarded the Vishisht Seva Medal today. Major General Gurbaksh Singh, Seva Nivrit, Corps of Signals. Brigadier Subhash Chandra Marwah, Corps of Electrical and Mechanical Engineers. Brigadier Rajinder Singh, Corps of Electrical and Mechanical Engineers. Brigadier Shivraj Bahadur Mathur, Regiment of Artillery. Brigadier Murlidhar Mahapatra, Army Medical Corps. Brigadier Rana Sudhir Kumar Kapoor, Corps of Engineers. Brigadier Y.P. Goyal, Rajputana Rifles. Brigadier Mohinder Kumar Batra, Regiment of Artillery. Colonel Victor David Ivor Devavaram, Madras Regiment. Colonel Vinod Kumar Gaur, Rajputana Rifles. Colonel Miss Soran Kaur Sandhu, Military Nursing Service.
Lieutenant Colonel J. Jacob, Corps of Intelligence. Major Deep Chand Thakur, Army Medical Corps. This year, a special plaque is being awarded to those units who have more than one highest gallantry award winner on their roll of honor. There are 6 units of the Army who have won more than one highest gallantry awards. These are The Pune Horse, Western Sector. For Lieutenant Colonel A.B. Tarapur, Paramveer Chakra for 1965 operations, and Second Lieutenant Arun Khetapal, Paramveer Chakra for 1971 operations. The award is being received by Commanding Officer Colonel G.S. Bal and Risaldar Major Ummeed Singh. For Mechanized Infantry, 1st Sikh, Western Sector, Lance Nayak, Subedar and Honorary Captain Karan Singh, Paramveer Chakra, Military Medal for Jammu and Kashmir Operations 1947-48, Subedar Joginder Singh, Paramveer Chakra, Posthumous for 1962 Operations, Jamadar Nand Singh, Mahavir Chakra, Posthumous, Victoria Cross. The award is being received by Commanding Officer Colonel S. Anand and Subedar Major Jakpal Singh. Second Battalion, the Sikh Regiment, Central Sector, and the recipients of the highest gallantry awards were Havaldar Bachittar Singh, Ashok Chakra, Posthumous for the Hyderabad operations 1948, Havaldar Joginder Singh, Ashok Chakra, Posthumous for Op Arcade in 1956. The award is being received by Commanding Officer Colonel P.R. Sangam and Subedar Major Kundan Singh. Twenty-second Battalion, the Grenadiers, Southern Sector, Second Lieutenant Rakesh Singh, Ashok Chakra, Posthumous for Operation Rakshak in 1993, Major Rajiv Kumar June, Ashok Chakra, Shaurya Chakra, Posthumous for Operation Rakshak in 1995. The award is being received by Commanding Officer Colonel Vinay Jetli and Subedar Major Rajendra Singh. Thirteenth Battalion of the Kumaon Regiment, Southern Sector, and the recipients of the highest gallantry awards were Major Shaitan Singh, Paramveer Chakra, Posthumous for Operations 1962, Naib Subedar Sajjan Singh, Ashok Chakra, Posthumous for Op Rakshak 1995. The award is being received by Commanding Officer Colonel Mahendra Singh Handa and Subedar Major Ram Avtar.
15th Battalion, the Kumaon Regiment, Central Sector, Major Bhukant Mishra, Ashok Chakra posthumous for Operation Blue Star in 1984, Nayak Nirbhay Singh, Ashok Chakra posthumous for Operation Blue Star in 1984. The award is being received by Commanding Officer Colonel Rumel Dhaya and Subedar Major Gopal Singh. Unit citation. Due to prevailing internal security situation, Army units are being frequently committed on operational tasks in an insurgency setting. For peacetime meritorious contributions, the award of Chief of Army Staff Appreciation is given. The tradition first started in 1993 is since then followed. The award of Chief of Army Staff Appreciation for outstanding performance during peacetime is awarded for the following: sustained good performance of a unit during no war, no peace scenario along the line of control, encountering and checking infiltration related minor operations, resolute defense, own territory and posts. Successful actions against infiltrators, insurgents and terrorists in counter-insurgency operations such as Operation Rakshak, Bajrang and Rhino. Last, exemplary performance in aid of civil authorities except for maintenance of law and order. 299 Field Regiment, Northern Sector. The award is being received by Commanding Officer Colonel O.P. Soni and Subedar Major Narayan Singh. Wireless Experimental Unit, Northern Sector. The award is being received by Commanding Officer Colonel B.R. Vora and Subedar Major R.S. Rohila. Seventh Battalion, Brigade of the Guards, Eastern Sector. The award is being received by the Commanding Officer, Colonel Manjeet Singh and Subedar Major I.B. Singha. Third Battalion, the Parachute Regiment, Eastern Sector. The award is being received by Commanding Officer Colonel K.Y.S. Panwar and Subedar Major Honorary Lieutenant Dharam Chand. Second Battalion, the Grenadiers, Northern Sector. The award is being received by the Commanding Officer, Colonel J.M. Singh and Subedar Major Bhagirath. Ninth Battalion, the Grenadier Regiment, Northern Sector. The award is being received by Commanding Officer Colonel I.A. Raj and Subedar Major Surendra Kumar. Fifteenth Battalion,
the Maratha Light Infantry, Eastern Sector. The award is being received by Lieutenant Colonel Balwan Singh and Subedar Major Pandurang Patil. Eighteenth Battalion, the Sikh Regiment, Northern Sector. The award is being received by Commanding Officer Colonel S.K. Mehta and Subedar Major Mohinder Singh. Fourteenth Battalion, the Dogra Regiment, Northern Sector. The award is being received by the Commanding Officer, Colonel H.S. Dhillon and Subedar Major Thakur Das. Second Battalion, the Garhwal Rifles, Central Sector. The award is being received by Commanding Officer Colonel S.K. Singh and Subedar Major Rajendra Singh Bisht. Fourteenth Battalion, the Garhwal Rifles, Eastern Sector. The award is being received by the Commanding Officer, Colonel Harish Pankan and Subedar Major Keshar Singh. Second Battalion, the Naga Regiment, Northern Sector. The award is being received by Commanding Officer Colonel R.K. Satyan and Subedar Major Lanu Ao. Second Battalion, 1 Gorkha Rifles, Northern Sector. The award is being received by the Commanding Officer, Colonel S.N. Yargop and Subedar Major Nandraj Gurung. Ninth Battalion, Rashtra Rifles, Northern Sector. The award is being received by Commanding Officer Colonel P.S. Paul and Subedar Major Birpal Singh Talan. Four Army Dog Unit, Northern Sector. The award is being received by Officer Commanding Major P.K. Singh and Senior JCO
नायब रिसालदार केसी सिंह। Thirty-first Assam Rifles, Eastern Sector. The award is being received by Commanding Officer Colonel R.S. Rohilla and Subedar Major P.S. Digari. Now, the Chief of Army Staff will address the parade. उन्नीस 1997 के सेना दिवस परेड पर हाजिर ऑफिसर्स, सरदार साहिबान और जवानों, सेना दिवस के मौके पर आप सबको मुबारक और आपके ज़रिए सेना के हर अफसर, हर सरदार और हर जवान को मैं मुबारकबाद भेजता हूं। आप जहां भी हैं, जिस किसी प्रांत में, देश के अंदर या देश के बाहर, मेरी मनोकामना है कि आप और आपके परिवार खुश और खुशहाल रहें। आज का ये शानदार परेड हमारी सेना की निष्ठा, कर्तव्यपरायणता और मजबूत आत्मविश्वास का प्रतीक है। 50 साल पहले सन 1947 में देश ने आज़ादी हासिल किया। भारतीय सेना को बहुत गर्व है कि इन 50 सालों से लगातार हम अपने देश की आज़ादी को, उसकी रक्षा को अपने खून से सींचते आ रहे हैं। इन 50 वर्षों में हमने 4 दफ़ा बहरूनी हमलावरों को खुली लड़ाई में ललकारा है। इलावा इसके चोरी छुपा बैरूनी इन्फिल्ट्रेशन, आतंकवाद और इंसर्जेंसी का लगातार जम के मुकाबला किया और इसको नीचा दिखा रहे हैं। देश को निस्वार्थ मेहनत, बलिदान और कुर्बानी से, ईमानदारी, वफादारी और बहादुरी के बल हमने देश और भारतीय सेना का झंडा हमेशा बुलंद रखा। पिछले साल 16 दिसंबर 1996 को हमारे हर एक छावनी में विजय दिवस की रजत जयंती मनाया गया। ये उस दिन का यादगार है जब 25 साल पहले इसी दिन पर
हमारे सामने दुश्मन के 93,000 फौज ने हथियार डाल दी। भारत के पूरे इतिहास में शायद ही इतनी बड़ी, इतनी महान विजय कभी मिली हो। और मुझे पूरा यकीन है हमारे ऐतिहासिक कारनामे आगे आने वाली पीढ़ियों को भी हौसले बुलंद रखेंगे। पिछले साल भी भारतीय सेना ने अनेक चुनौतियों का मजबूती से सामना किया। हमने बेमिसाल कामयाबी हासिल की। इसमें विदेशी आतंकवाद के प्रतिरोध में, कश्मीर में आम चुनावों की पूरी हिफाजत एक बड़ी सफलता थी। और इस बात की किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए कि सीमा पार से भेजे गए आतंकवादियों पर हमारी ये बहुत अहम फतेह थी। नए साल में शायद और चुनौतियां आ सकते हैं, इनका भी हम सामना करेंगे और इनसे भी हम निपट लेंगे। जहां जहां जैसे जैसे परिस्थिति होंगी, उनका सामना हमारे परंपरागत बहादुरी, कौशल और धीरज के साथ मुकाबला करेंगे। देश की सुरक्षा पर किसी भी तरह कहीं भी आंच लगने नहीं देंगे, ये हमारा वादा है। आज सेना दिवस पर आइए अपने शहीद साथियों को याद करें और उनके नाम के कसम लें कि देश की हिफाजत के लिए उनकी कुर्बानी, उनका बलिदान विफल नहीं होने देंगे। इस महान और पवित्र काम में परमात्मा जरूर हमारे साथ देंगे। शाबाश। जय हिंद। थल सेनाध्यक्ष ने अपना संदेश दिया, सैनिकों के बहादुरी के कारनामों की तारीफ की, उनका उत्साह बढ़ाया, जोश दिलाया। सेना के मुखिया ने, सेना के रहनुमा ने आज अपने सैनिकों को एक नई ताजगी और नई चेतना दी। भारत माता की जय जयकार से आकाश गूंज उठा। अब मार्च पास्ट आरंभ होगा। परेड कमांडर मेजर जनरल हिंद रवि सिंह मान के आदेश के साथ ही अब ये सैनिक थल सेनाध्यक्ष को सलामी देते हुए उनके सामने से गुजरेंगे। सबसे आगे होंगे परेड कमांडर, दिल्ली क्षेत्र के जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल हिंद रवि सिंह मान अपनी इस जीप पर सवार, जिस पर दिल्ली क्षेत्र की प्रतीक चिन्ह ये पताका फहरा रही है। थल सेनाध्यक्ष ने जहां अपना संदेश दिया, वहीं देश की सेना के उन शूरवीरों को सम्मानित किया है जिन्होंने अपनी सेना की शानदार परंपराओं को पालन करते हुए
कर्तव्य परायणता और फर्ज शनासी का परिचय देते हुए बहादुरी की कितनी ही गाथाएं लिख दी। देश की सेना के इतिहास में नए अध्याय जोड़ दिए। आज इन सैनिकों ने आज़ादी के बाद और उसके पहले का जो इतिहास है बताता है, और अब देश की अखंडता और एकता और देश की सीमाओं के रक्षा के लिए एक बार फिर इन्होंने ये सिद्ध कर दिया है, वतन की आन पर मिटने का आता है हुनर इनको, कदम धरती पे हैं लेकिन निगाहें आसमां पर हैं। तो जब निगाहें आगे हों, ऊंची हों, कदम बढ़ रहे हों, तो इन सैनिकों को अपना कर्तव्य पूरा करने से कोई शक्ति नहीं रोक सकती। ये वो हैं जिन्होंने रण क्षेत्र में खेत रहना बेहतर समझा लेकिन पीठ नहीं दिखाई, अपने झंडे का सम्मान रखा, अपने देश की आज़ादी का सम्मान रखा, देश की निवासियों की सुरक्षा की। और अब कुछ ही देर में ये जवान, ये बहादुर, ये शूरवीर, ये रणबांकुरे अब सेनाध्यक्ष को सलामी देंगे, मार्च करते हुए, कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ते हुए। और ये सब अनगिनत लोग, हजारों नजरें एकटक इन्हें देख रही हैं, जो देश की सीमाओं के पहरेदार हैं, प्रहरी हैं, और जिन्हें सिर्फ ये सिखाया गया है कि देश का कल सुरक्षित रहे, भले ही आज हम रहें ना रहें, तिरंगा फहराता रहे और भारतीय सेना के गौरवमय इतिहास में नए पुण्य जुड़ते रहें। नौसेनाध्यक्ष और वायुसेनाध्यक्ष, अभी अभी आपने देखा, थल सेना के दाएं बाएं बाजू कहा जा सकता है नौसेना और वायुसेना को। देश के आकाश के प्रहरी वायुसेना के जवान और मीलों किलोमीटरों लंबी जो किनारा है, सागर का तट है, उसकी सुरक्षा के जिम्मेदार नौसेना के जवान कंधे से कंधा मिलाकर वक्त पड़ने पर थल सेना के साथ आगे बढ़ते हैं। बैंड की इस मधुर धुन के साथ अब आरंभ होता है ये नयनाभिराम, आकर्षक, मन को लुभाने वाला मार्च पास्ट। अमर सेनानी ये धुन प्रतिध्वनित हो रही है इन सेनानियों के सम्मान में। भारतीय सेना के जवान आज सेना दिवस पर 15 जनवरी 1949 का वो दिन मनाने के लिए, जब एक भारतवासी ने, अपने देशवासी ने सेना की बागडोर संभाली थी ब्रिटिश कमांडर इन चीफ से। और ये वो सैनिक हैं जो न केवल रण क्षेत्र में ही अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, शांति समय में भी, और उसके अलावा इनमें से कितने ही ऐसे हैं जो खेल के मैदान पर भी देश का नाम रोशन करते हैं, अपनी प्रतिभा के बल पर देश की प्रतिष्ठा को ऊंचा उठाते हैं। बैंड की ये मधुर धुन, मिला जुला बैंड, पाइप और ड्रम्स और मास मिलिट्री बैंड अनेक धुनें छेड़ता हुआ इस समय मार्च पास्ट में सहयोग देगा। ड्रम की थाप पर, ताल पर कदम से कदम मिलाते हुए जिस तरह से ये बैंड वादक आगे बढ़ रहे हैं, उसी प्रकार मार्च पास्ट में भारतीय सेना के बहादुर अपने मुखिया को, थल सेनाध्यक्ष जनरल शंकर राय चौधरी, परम विशिष्ट सेवा मेडल को सलामी देते हुए उनके सामने से गुजरेंगे। जैसी रंग बिरंगी आकर्षक इनकी वेशभूषा, वैसे ही ये मधुर संगीत स्वर लहरी वातावरण में जैसे एक मधुर रस प्रवाहित कर रही हो, जोश दिलाती है और साथ ही मिठास भी देती है।
इस दौरान हल्के की वो कोहरी चादर जो सवेरे से यहाँ छाई हुई थी, उसे बींधती हुई हल्की धूप यहाँ परेड मैदान पर उतर आई है, मानो अभिनंदन कर रही हो भारत के सैनिकों का, बहादुरों का। अपने ढंग से अभिवादन, अपने ढंग से सम्मान प्रकट। विशाल परेड मैदान जीवंत हो उठा है और ये है भारतीय सेना का ध्वज, जिसके तले खड़े हो अभी अभी थल सेनाध्यक्ष ने वीर जवानों की परेड का निरीक्षण किया, उन्हें सम्मानित किया पदकों और सम्मानों द्वारा, और अब सलामी लेंगे। सबसे आगे परेड का नेतृत्व कर रहे हैं परेड कमांडर, दिल्ली क्षेत्र के जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल हिंद रवि सिंह मान, अति विशिष्ट सेवा मेडल। परेड कमांडर ने सलामी दी, थल सेनाध्यक्ष ने सलामी का उत्तर दिया और इस तरह से आरंभ हो रहा है ये मार्च पास्ट। और ये हैं 61वीं घुड़सवार सेना के जवान बहादुर, पूर्व ग्वालियर लांसर्स की पारंपरिक वेशभूषा में। कमान कैप्टन मनजिंदर सिंह भिंडर के हाथ में है। दुनिया की अब कुछ ही ऐसी घुड़सवार सेना है, इनमें से एक प्रमुख। 20 बैटल ऑनर्स और 6 थिएटर ऑनर्स मिल चुके हैं इसे, और अश्व शक्ति यशोबल इनका नारा है, इनका प्रतीक वाक्य है। अपने सवारों की तरह ही ये मूक पशु भी जानते हैं कि किस तरह से अनुशासन का पालन करना है, आदेश का पालन करना है। जैसे शानदार सवार वैसे ही शानदार घोड़े। और यह है रिमाउंट वेटरनरी कोर। इसकी स्थापना सन 1779 में हुई। उस समय की परंपराओं को आगे बढ़ाते हुए कैप्टन दीप अहलावत की कमान में रिमाउंट वेटरनरी कोर के दस्ते विश्व युद्धों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं, और उसके बाद आज़ादी के उपरांत भी जब भी ज़रूरत पड़ी विभिन्न युद्धों में ये आगे रहे। न केवल देश में बल्कि फ्रांस, इराक, पर्शिया, इटली और बर्मा में भी इन्होंने नाम पैदा किया, और फिर भारत पाक युद्धों के दौरान भी अपनी सेना की परंपराओं को, बहादुरी की परंपराओं को कायम रखते हुए कर्तव्य निभाया। साथ ही भारतीय शांति मिशनों में भी श्रीलंका में और सोमालिया में महत्वपूर्ण रोल अदा किया। और ये हैं मद्रास इंजीनियर ग्रुप के जवान, इनका नेतृत्व कर रहे हैं लेफ्टिनेंट प्रणय डांगवाल। और यह है कैप्टन विक्रमजीत सिंह वारियाच, जिनके आदेश पर सिग्नल ट्रेनिंग सेंटर कोर ऑफ सिग्नल्स के जवानों ने थल सेनाध्यक्ष को सलामी दी। और इनके साथ ही हैं सेकंड इन कमांड लेडी ऑफिसर लेफ्टिनेंट शैलजा रखीबे। थल सेनाध्यक्ष सलामी ग्रहण करते हुए कोर ऑफ सिग्नल्स। मेजर संजय कुमार की कमान में मद्रास रेजिमेंट की टुकड़ी 1758 में स्थापित। विश्व युद्धों में और उसके बाद आज़ादी के उपरांत भी जो युद्ध लड़े गए उनमें नाम पैदा किया।
इनका नारा है वीर मद्रासी अधिकोल्य। कितने ही पुरस्कार वीरता के लिए। मराठा लाइट इन्फेंट्री के जवान मेजर वसंत के नेतृत्व में। इनका इतिहास 200 वर्ष से भी पुराना है। दक्षिण अफ्रीका, तोब्रुक, कैसिनो और कई स्थानों पर इसके जवान बहादुर सैनिक नामदेव जादव ने विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त किया था अपनी वीरता के लिए, और इनका नारा है श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। मराठा लाइट इन्फेंट्री के जवान सलामी देते हुए मंच से आगे बढ़ गए। और ये हैं राजपूताना राइफल्स के बहादुर कैप्टन पंत पाणी आचार्य, इनका नेतृत्व कर रहे हैं। राजपूताना राइफल्स के इन जवानों ने 1 परमवीर चक्र, 1 अशोक चक्र, 6 महावीर चक्र, 41 वीर चक्र और कितने ही पुरस्कार वीरता के लिए प्राप्त किए हैं। बोलो राजा रामचंद्र जी की जय, यह है इनका युद्ध का नारा। और ये इस परिधान में सज्जित राजपूत रेजिमेंट की टुकड़ी कैप्टन अनुपम गौड़ की कमान में। थल सेनाध्यक्ष ने इनकी सलामी का जवाब दिया और पहले कमांडर इन चीफ भारत के इसी रेजिमेंट से थे। बजरंग बली की जय, हनुमान की हूं प्यारे, यह है इनका नारा। सिख लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट के जवान कैप्टन चंद्र सिंह शक्तावत के नेतृत्व में 1857 में स्थापना हुई, और आज जबकि गुरु गोविंद सिंह जयंती मनाई जा रही है सारे देश में, इनका नारा है बोले सो निहाल सत श्री अकाल। और इनका उद्देश्य वही जो गुरु महाराज ने कहा, देश सेवा बरमो गई है, शुभ कर्मन ते कबहु न डरूं अरिसों जब जाए लरूं, निश्चय कर अपनी जीत करूं। बहुत ही आकर्षक दृश्य है, आप सहमत होंगे। भारतीय सेना के ये बहादुर जवान अपने थल सेनाध्यक्ष को सलामी देते हुए कुमाऊं रेजिमेंट का दस्ता, कालिका माता की जय इनका युद्ध का नारा है, और इनकी कमान कैप्टन मनोज कुमार पाठक के पास है इस समय। इस रेजिमेंट ने सेना के 3 अध्यक्ष दिए हैं, जनरल पी.सी. नगेश, जनरल तिमैया और उनके अलावा जनरल रैना। पहला परमवीर चक्र भी कुमाऊं रेजिमेंट को मिला, जो कि अभी सलामी मंच के आगे, और अब बिहार रेजिमेंट की टुकड़ी सलामी दे रही है मेजर गगनदीप सिंह के नेतृत्व में। अनेक पुरस्कारों से सम्मानित, अशोक चक्र और वीर चक्र आदि से। यह है पहले 1st और 4th गुरखा राइफल्स के जवान, गुरखा हेड धारण किए हुए, कदम से कदम मिलाते हुए, नजरें सामने, कंधे तक उठते हुए, हाथ सलामी देते हुए थल सेनाध्यक्ष को। इसका निर्माण 1953 में हुआ। पहली और चौथे गुरखा राइफल सेंटर्स के यूनिट्स को मिलाने के बाद मेजर रवि शाह के नेतृत्व में अजय गुरखाली इनका युद्ध का नारा है, जिसे सुनते ही दुश्मन थर्रा उठता है, जमीन कांप उठती है। और ये जो जवान आप देख रहे हैं इस समय, ये हैं आर्मी सर्विस कोर के, जिनकी कमान है कैप्टन मनोज यादव के हाथ में, और इनके साथ हैं लेफ्टिनेंट कुसुम लखेरा, लेडी ऑफिसर, सेकंड इन कमांड की भूमिका में। समर्पित, हमेशा सेना का साथ देते हुए, राष्ट्र की सेवा में निष्ठा के साथ अपने फर्ज का पालन करते हुए। प्रादेशिक सेना के जवान, नागरिकों की सेना, यह हैं उत्तर पूर्व के 7 राज्यों के जवान इस प्रादेशिक सेना में। सेकंड लेफ्टिनेंट कंथोल फेंटो मरक के नेतृत्व में युद्ध हो या शांति, प्राकृतिक विपदा हो या और कोई राष्ट्र की जरूरत, सामाजिक कार्यों में हर स्थान पर मौजूद रहने के लिए इन्हें ट्रेनिंग दी जाती है, प्रशिक्षण दिया जाता है। और अब मैकेनाइज्ड कॉलम, सबसे पहले 62 कैवलरी के ये T-72 टैंक्स धरती को कपाते हुए
यहाँ यह हाल है तो आप खुद अनुमान कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि लड़ाई के मैदान पर जब ये चलते होंगे, ये गड़गड़ाहट और ये धड़धड़ाहट पैदा करते हुए दुश्मन का क्या हाल होता होगा। 3 मार्च 1981 को इनको गिलोन प्रदान किया था तत्कालीन राष्ट्रपति श्री नीलम संजीवा रेड्डी ने। धैर्य और शौर्य इनका नारा है। T-72 टैंक सलामी मंच से आगे बढ़ते हुए टैंक पर लगी तोपों ने अपने को झुका दिया है थल सेनाध्यक्ष के सम्मान में। और इस समय अर्जुन टैंक अब 43 आर्मर्ड रेजिमेंट की टुकड़ी, जिस पर यह अर्जुन टैंक अभी आपने देखा, 120 मिलीमीटर की तोप जो कि दूर तक मार करती है, मेजर जितेंद्र सिंह यादव सेना मेडल के नेतृत्व में। इसकी स्थापना 1 फरवरी 1981 में की गई थी। और अब 57वीं फील्ड रेजिमेंट की टुकड़ी 105 मिलीमीटर फील्ड रेजिमेंट गन्स, जो कि मैदानों में विशेष रूप से काम आती है, दूर तक मार करने के लिए 12 बैटल ऑनर्स ले चुके हैं 1849 से 1948 तक। और उसके बाद आज़ादी के बाद 2 वीर चक्र और 4 सेना मेडल जीते हैं इन बहादुरों ने, इस फील्ड रेजिमेंट के जवानों ने। आकाश को गुंजाते हुए ये हथियार मैकेनाइज्ड कॉलम के इस समय सलामी मंच के सामने से आगे की तरफ बढ़ते हुए कैप्टन राजेश मिश्रा के नेतृत्व में अब 155 मिलीमीटर हाउजर्स गन्स 158 मीडियम रेजिमेंट, कंप्यूटर्स द्वारा नियंत्रित। इसके बाद कैप्टन संजीव शर्मा के नेतृत्व में ये 214 रॉकेट रेजिमेंट यूराल व्हीकल्स पर हैं। ये मल्टी बैरल रॉकेट हैं, एक साथ कितने ही रॉकेट छूटते हैं और एक कयामत बर्पा कर देते हैं लड़ाई के मैदान पर। और इस समय ये हैं मिसाइल्स, पृथ्वी मिसाइल्स नाम से जानी जाती हैं, न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी इनकी धाक है। धरती पर मार करने वाली पृथ्वी मिसाइल्स मेजर जयप्रकाश उनियाल के नेतृत्व में। आकाश को कंपाती हुई धरती से धरती पर मार करने वाली ये मिसाइल्स। मिसाइल्स का निर्माण किया है डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट संस्थान ने। और अब धीरे धीरे मंच की तरफ बढ़ते हुए अन्य मिसाइल्स। इस टैंक पर हैं ये स्टेला 10M मिसाइल सिस्टम। कैप्टन सुधीर नायर की कमान में है ये 510 लाइट एयर डिफेंस रेजिमेंट की ये टुकड़ी।
और ये अस्त्र हथियार, प्रक्षेपास्त्र हथियार अपने आप में बहुत ही भयानक, खतरनाक, दुश्मन जिन्हें देख कर ही थर्रा उठता है। बैंड की मधुर धुन के साथ आगे की तरफ बढ़ते हुए ये मैकेनाइज्ड कॉलम की टुकड़ियाँ। इस समय सलामी मंच के सामने से मेजर मिलिंद खांडेकर के नेतृत्व में यह है 511 एयर डिफेंस मिसाइल रेजिमेंट का दस्ता। इसमें 2 बैटरीज हैं, बहुत ही मारक शक्ति रखने वाली, धरती से हवा में मार करने वाली। आज के आधुनिक युग में विज्ञान जो कुछ भी दे सकता है वो भारतीय सेना के पास है। इन्हें देखकर किस भारतवासी को गर्व नहीं होगा, ये विश्वास होगा कि इन बहादुरों के हाथ में जब ऐसे हथियार हैं, देश की सीमाएं सदा सुरक्षित रहेंगी। देश की आज़ादी और अखंडता के ये प्रहरी हमेशा चौकन्ने हैं। और ये तो आप पहचान गए, हेलीकॉप्टर चेतक। ये रैकी और ऑब्जर्वेशन स्क्वाड्रन जो कि आर्मी एविएशन कोर का है, उसका है मेजर प्रदीप वालिया के नेतृत्व में 3 महावीर चक्र और 5 वीर चक्र से सम्मानित ये रैकी और ऑब्जर्वेशन स्क्वाड्रन, जिसका ये चेतक हेलीकॉप्टर आसमान की ऊंचाइयों को नापने की क्षमता रखने वाला, वक्त ज़रूरत पर सेना का साथ देने वाला, आगे के मोर्चों पर या पीछे कहीं जहां भी सहायता की ज़रूरत हो। हेलीकॉप्टर के बाद अब ये जो टुकड़ी आ रही है वो है 415 इंडिपेंडेंट इंजीनियर स्क्वाड्रन। सलामी मंच के सामने इस समय AM-50 ब्रिज 1985 में स्थापित मद्रास सैपर्स की ये टुकड़ी, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं कैप्टन गौरव मिश्रा, फुल आनन फानन में बना लेते हैं ये जवान, जहां कहीं नदी नालों पर ज़रूरत होती है और आसानी से उस पर से टैंक्स भी गुजर जाते हैं, इतनी शक्ति है इनमें। और यह है ICV BMP-2। नेतृत्व नायब सूबेदार अंचल सिंह और नायब सूबेदार कश्मीर सिंह के हाथ में। बोलो भारत माता की जय, ये नारा है 9वीं बटालियन मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री 7 ग्रेनेडियर्स का। सेना की सहायता के लिए हमेशा तत्पर यह खतरनाक हथियार। सलामी मंच के सामने से एक एक कर ये गाड़ियां इन हथियारों को, खतरनाक हथियारों को, भयावह हथियारों को लेकर आगे बढ़ रही हैं। और अब 19वीं बटालियन द ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स का मैकेनाइज्ड रैकी एंड सपोर्ट व्हील यानी पहियों पर BRDM, शत्रु के टैंकों को मसमार करने की क्षमता है इनमें, जो अब सलामी मंच के सामने आ रहे हैं इस समय कैप्टन संपूरन सिंह के नेतृत्व में। सेना दिवस के अवसर पर आयोजित ये परेड, जिसमें अब जीप पर सवार आ रहे हैं परेड के सेकंड इन कमांड उप अधिकारी ब्रिगेडियर FB खत्री, जो कि दिल्ली क्षेत्र के डिप्टी जनरल ऑफिसर कमांडिंग हैं। ब्रिगेडियर फौदा बहादुर खत्री, डिप्टी जनरल ऑफिसर कमांडिंग दिल्ली क्षेत्र, और
परेड के उप कमांडर। The parade second in command, Brigadier S.B. Khatri, Deputy General Officer commanding Delhi area, is now saluting past the day. और ये बैंड जिनकी मधुर धुन पर मार्च करते हुए इन सैनिकों ने थल सेना अध्यक्ष को सलामी दी और धुन छेड़ता हुआ इस समय देशों का सरताज भारत और कदम कदम बढ़ाए जा, जैसे कह रहा हो हमारे इरादे हमेशा जमा हैं, हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है। मास मिलिट्री बैंड जिसमें देश की अनेक रेजिमेंट्स के बैंड हैं। गढ़वाल राइफल्स, कुमाऊं रेजिमेंट, बिहार रेजिमेंट, तीसरी और नवी गोरखा राइफल्स, आर्मी सर्विस कोर, पायनियर कोर ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स के बैंड और इस समय आनंद लीजिए। सामूहिक मिलिट्री बैंड के बाद अब मास पाइप्स और ड्रम्स, सारा वातावरण यहां दिल्ली के इस परेड मैदान पर संगीतमय उठा है। संगीत और वीरता दोनों जैसे एक दूसरे के पूरक हों। जोश दिलाता हुआ अब जो बैंड आ रहा है सलामी मंच की तरफ, जिसके बैंड मास्टर ने आदेश दिया इस अनूठे ढंग से, वो है मास पाइप्स और ड्रम्स का, और उसमें भी अनेक बैंड शामिल हैं देश की विभिन्न सेना की रेजिमेंटों के, यहाँ इस परेड मैदान पर। जोशीली धुन, उत्साहवर्धक धुन और साथ ही प्रेरणादायक। इस प्रकार दिल्ली छावनी के इस परेड मैदान पर आयोजित आज 15 जनवरी 1997 को ये सेना दिवस परेड संपन्न हुई, जिसके सलामी ली थल सेना अध्यक्ष जनरल शंकर रॉय चौधरी परम विशिष्ट सेवा मेडल ने। देश के इन बहादुर जवानों के लिए, इन शूरवीरों के लिए, इन योद्धाओं के लिए आज हर देशवासी की एक ही कामना है, एक ही अभिलाषा है। निगाहें हिमालय की ऊंची रहें, सदा चांद तारों को छूती रहें, रहे पाक गंगोत्री की भवन, मचलती रहे जुल्फ गंगो जमन, फिजा रोशनी में नहाती रहे, हमारी जमीन जगमगाती रहे। और सैन्य क्षमता देकर देश की सुरक्षा के बारे में एक बार आश्वस्त बीच में साउंड सेना अध्यक्ष